Hello students, today I will start the third chapter of class 12th biology syllabus, that is human reproduction. What is reproduction? In earlier classes I have discussed about the process of reproduction. What is reproduction? Reproduction is a biological process through which an organism produces young ones similar to themselves. It is because the lifespan of organism is fixed, so organism produces young ones to maintain their species continuity. Okay. In human being, for the process of reproduction, a well-developed system is present, and that system is called human reproductive system. In human being, for the process of reproduction, a well-developed system is present, and the system is called human reproductive system. What is system? सिस्टम किसे कहते हैं? जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम सुना, रेस्पिरेटरी सिस्टम सुना, तो व्हाट इज सिस्टम? क्वेश्चन इज सिस्टम क्या होता है? तो सेट ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन which performs a similar function are called system. Group of organ which are organized to perform a similar function, then they constitute a system. So in human being, for the process of reproduction, several organs are organized in such a way that they perform a similar function, and that function is reproduction. So reproductive system is set of interconnected. It is set of interconnected organs which performs a similar function. Performs a similar function that is रिप्रोडक्शन. क्या फंक्शन करेंगे ये ऑर्गन्स? तो ये ऑर्गन एक साथ मिलकर एक ही फंक्शन को करने वाले हैं, एंड दैट फंक्शन इज रिप्रोडक्शन. सो दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दे कंस्टिट्यूट रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Several organs are present in reproductive system. So on the basis of their function and importance, these reproductive organs are broadly classified into two types. ये कई सारे organs मिलकर reproductive system का formation करेंगे, तो इसमें function के हिसाब से उनका क्या importance है, इस हिसाब से reproductive system के organs को हम दो part में differentiate करेंगे. And reproductive system, organs of reproductive systems are broadly divided into two types. Organs of reproductive organs are broadly divided into two types. First is primary sex organ. And second is secondary sex organ. First is primary sex organ and second is secondary sex organ. Primary sex organ and secondary sex organ. What are primary sex organs? Primary sex organs are those organs which plays very important role in the process of reproduction. Without primary sex organ, the process of reproduction does not occur. So it is essential for reproduction. Hence, these are primary sex organs. So primary sex organs are those organs which are essential for reproduction. Now, what are the major essential condition for reproduction process? Reproduction process के लिए essential condition आप क्या समझते हैं? तो reproduction is fusion of male and female gamete. तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, यानी विदाउट गैमेट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. हेंस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैमेटोजेनेसिस. ये गैमेट्स बनाते हैं, इसलिए इनके बिना रिप्रोडक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पास आ ही नहीं सकता, इसके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हो गए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. तो दोज ऑर्गन्स which plays important role in gametogenesis, and these are also
इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे सिक्रेट सम हॉर्मोन्स। ये गैमेटोजेनेसिस भी करते हैं। गैमेटोजेनेसिस और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये हॉर्मोन्स का भी सिक्रेशन करते हैं। तो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, गैमेटोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर those organs which plays an important role, in gametogenesis, and they also secretes हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स का भी सिक्रेशन करते हैं ताकि हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को सक्सेसफुली कर सकें। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस करेंगे, साथ में हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करेंगे ताकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सकें। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन चूंकि ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करता है, ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल, सो सारे ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल के अलग अलग होंगे क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यहाँ पर मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अलग होगा, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अलग होगा और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी अलग होगा, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी अलग होगा। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड टेस्टिस एंड फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है, तो ये हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिनका डायरेक्ट रोल है गैमेटोजेनेसिस में और जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। और मेल और फीमेल में अलग अलग सेक्स ऑर्गन क्योंकि ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं। तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी। टेस्टिस में मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा और ओवरी के अंदर में फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होगा। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड व्हाट आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स जिनका गैमेटोजेनेसिस से कोई मतलब नहीं, यानी ये गैमेट्स नहीं बना रहे। गैमेट्स नहीं बना रहे तो ऑब्वियस है कि प्राइमरी के जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गैमेट्स नहीं फॉर्मेशन कर रहे, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। इनके बिना भी रिप्रोडक्शन ह्यूमन में पॉसिबल नहीं। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के जितना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस नहीं करते, साथ में ये हॉर्मोन्स का भी सिक्रेशन नहीं करते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। सो these are those organs which does not plays any role in gametogenesis and secretion of hormone but are important for the process of reproduction. Male secondary sex organ अलग और फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी अलग होगा। तो मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वास एफरेंसिया, वास डिफरेंसिया, या डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ejaculatory duct,
यूरेथ्रा, पेनिस। और यहाँ पर कुछ ग्लैंड भी होते हैं, लेकिन वो ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करते, हार्मोन के अलावा कुछ दूसरे केमिकल का सिक्रेशन करते हैं। और ये सारे ग्लैंड कैसे होते हैं? ये सारे ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करते, तो इसका मतलब डक्ट में सिक्रेशन को डालते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जैसे यहाँ पर ग्लैंड होगा, कुछ ग्लैंड भी होगा, और वो ग्लैंड क्या होंगे? तो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में होगा। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या? तो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कंटेन्स फैलोपियन ट्यूब। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएंगे? तो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इंक्लूड्स फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, और ग्लैंड्स में यहाँ पर क्या होंगे? तो फीमेल में जो ग्लैंड होगा वो बर्थोलिन ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। तो ये हुए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल के। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमेटोजेनेसिस करता है और जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो ना तो गैमेटोजेनेसिस करता है ना ही हार्मोन का सिक्रेशन करता है। लेकिन ये ऑर्गन्स फिर भी इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। यहाँ पर जो ग्लैंड होते हैं वो एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं, जो केमिकल को सिक्रेट करते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स नहीं होते। ठीक है।